Good morning, students. So we are doing chapter third, population composition, and in this chapter we have discussed the first part of this introduction and sex composition of the world. We have discussed. Today we will discuss about the age structure. What we will discuss? We will discuss about the age structure. In age structure, we have already discussed about the categories. We have made three categories of age structure. First is given 0 to 14. This is called children or children. Then we have discussed 15 to 59, that we are calling the young population and the working population. Above 60, that is also the part of this age structure. So we will discuss today about this age structure. You know very well age structure is playing a major role. The countries those who have the more population, working population between 15 to 59, that country, those countries are mostly developed countries and their economic development is also more. But the country those have the more population in the 0 to 14 and above 60, so that is the problem for that country, because economic development is not possible with the help of these two categories. Economic development we can do with the help of the age structure between 15 to 59. So what is written here, this age structure represent the number of people of different age groups that we have discussed. This is an important indicator of population composition, since a large size of population in the age of 1559 indicate a large working population, that I have already told you. If the population is in the aging, it means above 60, more population in the aging, so we have to spend more money on the health infrastructure and health facilities, so that will be the loss for the economic development of a country. अगर किसी देश के अंदर एजिंग पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ पे क्या दिक्कत आएगी कि वहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हेल्थ फैसिलिटी को ज़्यादा इंप्रूव करना पड़ेगा. तो उसके कारण क्या होगा, हमारा मेन कंसंट्रेशन किस पे हो जाएगा, हेल्थ फैसिलिटी पे. रिमेनिंग फैसिलिटीज़ वी कैन नॉट डू. सो दिस इज़ द थिंग. देन नेक्स्ट इज गिवन एंड दोज कंट्रीज़ हैव पॉपुलेशन बिटवीन 0 to 14 हाई, जिसके देश के अंदर ज़्यादा है वहाँ पे क्या है, बर्थ रेट ज़्यादा हाई है. सो दैट इज़ ऑल्सो हार्मफुल. जिन कंट्रीज़ के अंदर 0 to 14 के अंदर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उन कंट्रीज़ की क्या है, बर्थ रेट बहुत ज़्यादा हाई है. दैट इज़ ऑल्सो हार्मफुल. नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ गिवन एज सेक्स पिरामिड. पिरामिड क्या होता है, दीज आर द पिरामिड्स ऑल. वी आर मेकिंग दीज पिरामिड्स. ये सारे आपके क्या हैं, पिरामिड्स हैं. अब इसके अंदर क्या बताया गया है कि वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट कंट्रीज ए सेक्स पिरामिड, बिकॉज इट इज़ नॉट सेम. हर एक कंट्री का आपको ए सेक्स पिरामिड डिफरेंट मिलेगा. इट इज़ डिपेंड ऑन द बर्थ रेट. ये बर्थ रेट के ऊपर डिपेंड करता है कि बर्थ रेट ज़्यादा है कम है, उसके अकॉर्डिंग ही ये इसका आपका शेप है वो अलग अलग बन जाएगा. नाउ व्हेन वी आर मेकिंग इट, व्हाट वी विल डू, फर्स्ट वी विल मेक द लाइन्स इन दिस वे, and in the right side we will show the female, in the left side we will show the male, and here we will show the age group this side, and in down side we will show the percent. This is the proper formula you have to remember. In the right side we will show the female, and in left side we will show the male, and here we will show, sorry, here we will show the age groups, and in this side we will show the percentage. So this is the formula for this. So this is the three category. There are three categories, broadly three categories we have made for the ASX pyramid. First is given expanding population. First is given expanding population. One is given expanding population. Expanding means the population is increasing. इट मीन्स इन दीज कंट्रीज पॉपुलेशन बर्थ रेट इज़ वेरी हाई. यानी एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन में आपको क्या देखने को मिलेगा, बर्थ रेट है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी. what is written here you will see, it is also in the shape of triangular shape. In this way you can see it is made. इस तरीके से बना हुआ है ये आपका एक ट्रायंगुलर शेप में. सो what is written here you can see, the ASX pyramid of Nigeria, as you can see, is triangular shaped pyramid with a wide base and is typically less developed country. And the countries those who have the shape of this type of triangular shape pyramid, वो कंट्रीज़ आपको क्या मिलेंगे, लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ मिलेंगे. यहाँ पे क्या होगा, बर्थ रेट ज़्यादा मिलेगी आपको. बर्थ रेट इज़ हाई इन दिस एरिया, यू कैन सी हियर इज रिटन. एंड if we will make that ASX pyramid of Bangladesh and Mexico, that will also be same like this. So remember this thing, when we will make the ASX pyramid, we will mark a female in the right side and a male in the left side, and age in this side and percentage in the down side. And any countries those ASX pyramid is in the triangular shape, they are coming in the expanding population. It means their age structure or ASX pyramid will be like this, and they are less developed countries because birth rate, you can see this is the birth rate downside, it is very high. So those countries birth rate is high, that countries have the triangular shape
A6 pyramid, and in that country less developed also that country. Next is given constant. Constant means not so much high birth rate. That is called in Australia's A6 pyramid is bell shaped, tapered towards the top. You can see the shape of this is bell, like bell जो आपके घरों में जैसे आपके मंदिर वगैरह के अंदर होती है. This type of bell you can see here. This shows birth and death rate are almost equal. It means we have seen that the birth rate is not so much high in this area, and birth rate is not high and death rate is also not high, though both are balanced. So that country is called coming in the constant population. Australia, example of this country is Australia. Now next is given declining population. In those countries birth rate is low, so in those countries population is declining. Japan is the example of this country. You can see the birth rate is very low in these countries. So in birth rate is very low in those countries, that's why the declining pyramids are made here, declining population. Example is given Japan. So you will remember the expanding population, it is Nigeria, Bangladesh and Mexico. Constant Australia, and declining, that is Japan. So these things we have discussed about the A6 pyramid. Next thing is given about the one box is made here, aging population. What is written here that the countries those who have the more population in above 60 years, यानी जिस देश की पॉपुलेशन या जिन देशों की पॉपुलेशन अबव 60 है, तो उन देश के अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है कि उनको हेल्थ फैसिलिटी अपनी इम्प्रूव करनी पड़ रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है, वहाँ पे ज़्यादा एक्सपेंडिचर उनका कहाँ पे आ रहा है, हेल्थ पे आ रहा है. सो दैट इज़ ऑल्सो ए प्रॉब्लम फॉर दैट कंट्री. और जहाँ पे आपका बर्थ रेट ज़्यादा है तो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, वहाँ पे क्या है आपका 0 to 14 है, उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है. सो दैट इज़ ऑल्सो हार्मफुल. बैलेंस शुड बी देयर. Working population is required for every country for the development. Now next is given rural urban composition. Rural urban composition means in which area people are living in rural mostly and in urban areas people are living mostly. That we will discuss. इसमें ये बताया जाएगा कि कौन से कंट्रीज़ के अंदर, कौन से एरियाज़ के अंदर क्या है कि रूरल पॉपुलेशन ज़्यादा है, अर्बन पॉपुलेशन कम है, या अर्बन पॉपुलेशन ज़्यादा है या रूरल पॉपुलेशन कम है. तो व्हाट इज सेड इन द कंट्रीज, यू विल रीड इट. व्हाट इज सेड, those are the European countries, Canada and USA particularly. In those countries अर्बन पॉपुलेशन इज़ मेनली ऑफ फीमेल, यानी वहाँ पे फीमेल पॉपुलेशन आपको ज़्यादा मिलेगी अर्बन एरिया में. रूरल एरिया में मेल पॉपुलेशन ज़्यादा मिलेगी. वाई? बिकॉज एग्रीकल्चरल वर्क इज़ टोटली मैकेनाइज्ड एंड दैट इज़ डन बाय द मेल. यानी मैकेनाइज्ड, वहाँ पे मशीनरी का यूज एग्रीकल्चर में ज़्यादा है, तो मोस्टली वो काम कौन करते हैं, मेल करते हैं. तो मेल मोस्टली कहाँ मिलेंगे आपको, रूरल एरिया में ज़्यादा मिलेंगे. अर्बन एरिया में सेकेंडरी एंड टर्शियरी एक्टिविटीज़ आर मोर, सो इन दोज एरियाज पीपल फीमेल आर वर्किंग मोर इन दोज कंट्रीज़. वहाँ पे फीमेल आपको ज़्यादा मिलेगी क्योंकि सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटीज़ में मोस्टली वर्क है वो फीमेल है, वहाँ पे आसानी से कर सकती है. बट इफ़ यू विल कमिंग इन द एशियन कंट्रीज़ एंड अफ्रीकन कंट्रीज़, अगर हम यही एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज़ में आते हैं तो वहाँ पे ये अपोजिट है. क्या है कि हमारे यहाँ पे देखा है कि रूरल पॉपुलेशन में आपको क्या है, मेनली फीमेल ज़्यादा मिलेगी, अर्बन पॉपुलेशन में मेल ज़्यादा मिलेंगे. कारण क्या है कि हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ मोस्टली मैकेनाइज्ड ज़्यादा नहीं है. दैट्स वाई द फीमेल आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़. प्राइमरी एक्टिविटीज़ में फीमेल आपको ज़्यादा मिलेगी. और दूसरा अर्बन एरिया में क्या है कि पीपल दोज हु आर लिविंग इन आवर कंट्रीज़ लाइक एशियन कंट्रीज, सो दे आर गोइंग फॉर द वर्क इन द सिटीज़, अर्बन एरियाज़. वो काम के लिए वहाँ पे जाते हैं, इसलिए क्या है कि वहाँ पे पॉपुलेशन मेल की ज़्यादा हो जाती है, और रूरल में पॉपुलेशन किसकी ज़्यादा हो जाती है, फीमेल की ज़्यादा हो जाती है. बट इफ़ यू विल थिंक इन द अदर कंट्रीज़, पर्टिकुलरली यूरोपियन कंट्रीज़ और आपका USA और आपका कनाडा के अंदर देखेंगे तो ये अपोजिट है. वहाँ पे रूरल में मेल पॉपुलेशन ज़्यादा है और आपका अर्बन में फीमेल पॉपुलेशन ज़्यादा है. यू अंडरस्टूड अबाउट दिस थिंग. Next is given about the literacy rate. Literacy rate, you know very well, that is the one of the most important indicator for the economic development of a country. Literacy rate एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए. क्यों? क्योंकि उसके अंदर उसका मेन रोल होता है लिटरेट पर्सनस, दे नो ईच एंड एवरीथिंग एंड दे कैन डू गुड वर्क इन कंपेरिजन ऑफ इलिटरेट पर्सन. तो अब इसके अंदर जो आपका मैंने रूरल अर्बन कंपोजिशन है उसका इन्होंने ये एग्जाम्पल भी दे रखा है यहाँ पे, डायग्राम भी बना हुआ है. तो इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो कि कौन से कंट्रीज़ के अंदर जो सेक्स कंपोजिशन है उसका जो आपका वर्क है वो किस प्रकार वो करने, रूरल अर्बन में कौन से एरिया में ज़्यादा है, दैट इज शोन हियर. अब लिटरेसी रेट के बारे में बताया मैंने. लिटरेसी रेट एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए. तो उसमें इन्होंने कहा है कि ए पर्सन हु कैन रीड एंड राइट एंड अबव 7 years, तो दैट पर्सन इज कॉल्ड
लिटरेट यानी एक व्यक्ति जो 7 साल से ऊपर इसकी एज है और जो लिख सकता है और पढ़ सकता है इन एनी वन लैंग्वेज, कोई एक लैंग्वेज के अंदर, तो उसको हम क्या मानते हैं, उसको हम लिटरेट मानते हैं। नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज गिवन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि पीपल आर इन्वॉल्व इन द डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्यूपेशंस, प्राइमरी में, सेकेंडरी में और टर्सरी में, दैट वी विल डिस्कस। तो मोस्टली द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है वो किसके लिए बनाया जाता है, ये वर्किंग पॉपुलेशन जो आपकी है 15 to 59 उसके बीच में होगा। देन नेक्स्ट इज गिवन वर्किंग पॉपुलेशन में आपका जो 15 to 59 है, दैट इज ऑल्सो डिपेंड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, यानी कौन से कंट्रीज ज़्यादा डेवलप्ड हैं, कौन से कंट्रीज नॉट डेवलप्ड कंट्रीज हैं। तो डेवलप्ड कंट्रीज़ में आपको क्या मिलेगा, मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर इन्वॉल्व इन द सेकेंडरी एंड टर्सरी एक्टिविटीज ज़्यादा मिलेंगे आपको। एंड दोज आर द डेवलपिंग कंट्रीज, इन दोज कंट्रीज मोर पॉपुलेशन इज इन्वॉल्व इन द प्राइमरी एक्टिविटीज़। तो इसके अंदर बताया गया आपका प्राइमरी एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग और मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, कमर्शियल, ट्रांसपोर्ट सर्विस, कम्युनिकेशन एंड अदर अनक्लासिफाइड सर्विसेज, ये सारी आपकी किस में आती है, सेकेंडरी और टर्सरी में आती है। तो मोस्टली जो कंट्रीज़ है जहाँ पे आपकी डेवलपिंग में है वहाँ पे मोर पीपल आर इन्वॉल्व इन द प्राइमरी एक्टिविटीज़, वहाँ पे आपको लोग क्या हैं मेनली कहाँ पे किस में मिलेंगे, वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर मिलेंगे। बट जहाँ जो दो आर द डेवलप्ड कंट्रीज़ वहाँ पे पॉपुलेशन आपकी ज़्यादा किस में इन्वॉल्व मिलेगी, सेकेंडरी एंड टर्सरी में, यही इसमें बताया गया है। सो टुडे वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर। इफ़ यू हैव एनी डाउट वी विल डिस्कस इन द ऑनलाइन क्लास। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।